ठीक है, कर दिया मैं। हम्म, तो प्यूरी प्यूरी एप्स लाइब्रेरी हम्म। एप्स लाइब्रेरी में जाएंगे। या ऋषिकेश। हाय ऋषिकेश, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, वो नहीं बोल रहा। राइट, ऐसे क्वेरी एप्स ऑल एप्स यहाँ पे मैं any apps I can search sales. So previously we have seen something. So let me check this one. Suppose we are this Fury apps I want to configure in my system, right? So this is the detail. And now I will go to the system and check the version installed. So here the S4 HANA on device. So the base. Okay. So here device. Okay. So the base. So this is the detail. Let me check again. PS4 HANA UV 2023. And what is the service pack? Initial packing. Initial packing. It is initial volume. So now maybe initially लूंगा 2023 का. Okay. So now this is the product features. इसमें आपको दो है, सेल्स वॉल्यूम एनालिसिस क्वेरी और सेल्स वॉल्यूम बाय एरिया क्वेरीज. सो बोथ है. सो दिस इज कंजम्पशन की. मैं एक चीज और एक्सप्लेन करना आप लोगों को मिल गया. That it keeps open. Meanwhile, I will go to implementation information. Here पहले आप देखेंगे UIS4 of 900 service pack 00. So 900 service pack 00. सही है. ओके. तो S44108 S44108 सर्विस पैक 0 सब सही है. ठीक है, मैच कर रहा है. Then I will go to IWFND slash MAND and underscore services.
This is the T code where we will activate our Fury apps. Okay. ये ID खुल तो नहीं रहा है. Eclipse. Okay. Now हम्म I will go to configuration. So this is UI5 element, and here is our CDS view. Okay. Let's see the CDS view is activated or not. Add services. Here I will put total. Okay, sorry. Pardon, but I'm not reading it. Backend service is already registered for the system alias. Means it is saying already registered. Okay. So let me go to filter option. Back. Okay. Yeah, filter option already registered. So filter option star star. Yeah, this is the service. It is already activated. Okay. Load metadata. And there is one more service is there. CDS view. I think so. Both are same. This is older one and this is new one. Maybe let's see what is showing. Okay, it is also activated. Load metadata. Now I will check catalog. So slash I to slash FLTD underscore test. This is the T code for the TV designer. लॉगिन करना है क्या? एक सेकेंड. हो गया है वो लॉन्च उधर. हम्म हाँ, इसका पासवर्ड क्या था? पी पासवर्ड थोड़ी देर ASS. चैट में भेजो ना मेरा, तो मोबाइल में भेजो पासवर्ड.
हेलो। क्या हेलो? मैंने भेज दिया था आपको। व्हाट्सएप पे क्या? ए, okay, then let me testing actually. Yeah. So now this is activated. Now if I want to configure the launchpad, remember my decision, allow, okay, going here to the user. After providing password, it should log in. Yeah, now it is login. Some issue previously, I'm not able to log in. Just wait. So already we have one catalog, right? हम्म। So it is, if I will create new one, then again it will ask password. So the catalog. जेड क्वेरी नाम था ना। ये कस्टमर था। ओके, हम्म। यहाँ पे टाइल्स क्रिएट करते हैं, डायनेमिक टाइल्स। ओके, tiles is created. Now here I will give title, sales query, और subtitle भी दे देता हूँ, राइट। और इसका कीवर्ड वीवर्ड कुछ भी दे सकते हो आपकी मर्जी। यहाँ थोड़ा मेन रहता है आपको। Here you have to provide from this thing. This is the semantic
object billing document, right? So here you have to provide symmetric object billing document और इधर जाएंगे एक्शन आएगा आपका ये राइट और आई थिंक से जाइए ये पैरामीटर आईडी है पैरामीटर वैल्यूज दे दीजिए मैं तो कभी ये दिया नहीं इसलिए लिखा हुआ है पूरे में। चलो ठीक है देखते हैं क्या आता है और ये आ गया कैटलॉग बिजनेस और ठीक है नाउ आई एम ओके डेबिट ये आईडी आपका आ जाता है टारगेट मैपिंग में गए टारगेट मैपिंग में क्लियर टारगेट मैपिंग तो सेल्स क्वेरी हमारा इसमें क्या था बिलिंग डॉक्यूमेंट करेक्ट बिलिंग डॉक्यूमेंट और ये क्या था हमारा अंकुर 7 यस एक बार 2 मिनट के लिए सर्वर चाहिए था, बस एक फाइल लेनी थी। एक बार 2 मिनट के अच्छा लिए डिस्कनेक्ट होगा। एक सेकंड अभी हाँ तुरंत लेना है क्या हाँ हाँ, कोई नहीं, ये आप सेव नहीं करोगे तो चलेगा, वो अपने आप हो जाएगा आपका यहीं से। चलो ठीक है ले लीजिए हाँ 2 मिनट बस। मेरे को डिस्कनेक्ट करना होगा नहीं नहीं, वो खुद आप कनेक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। ओके इसमें ये रहता है, वो काम आ जाता है। हाँ तो ले लीजिए वही कर रहे हैं। हाँ गुड कर लो अब।
Again, I'm sharing my screen ओके। here at हम्म this location. So titles measure data on sales, volume, UUERY, query, हम्म URL में इधर से देता हूँ URL क्या है उसका URL URL राइट। बट अंकुल अपन ये रिलीज नहीं कर पाएंगे ये बनवा के अभी तो, रोल असाइन करने के लिए। देखते हैं रोल असाइन। क्योंकि उन्होंने खुद एक ही करके दिया था मैं वो एग्जिस्टिंग में तो वही जो, उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ ना। नहीं उन्होंने हमें जो, बट अगर एक और आप कैटलॉग बना रहे हो ना तो उसको भी वापस रिलीज करवाना पड़ेगा ना। आपको याद है यहाँ पे क्या दिए थे S4। H4H यस क्या ओ था? तो ये थे ना। S4H ही तो था, S4H। यस ओ यस ओ यस था क्या। स्लैश नहीं था शायद, ऐसा उधर आईडी में ही ना जहाँ से अपन ने वो प्रॉपर्टीज में देखा था। ये प्रॉपर्टीज में हम्म उसमें कॉन्फ़िगर S4H है। हम्म एलियास नेम इधर कुछ नहीं दिया हुआ। इसलिए बेसिकली देते हैं एलियास नेम। एलियास नेम क्रिएट होता है उस हिसाब से देते हम्म हैं। यहाँ एलियास नेम क्या है वो भी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। इसमें गए आपको ESPRO ESPRO में गए वहां पे गए तो ढूंढना हम्म पड़ता है। तो बाप 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 क्रॉस एप्लीकेशन किसमें होता था यार। याद नहीं है ये। तो कंट्रोल है कंट्रोल है ALIAS। डाटा ये ये है। ओके हम्म सो इसको डिस्प्ले करता हूँ। ये सब लोकल है ऐसे। जैसे फ्यूरी मेन्यू है इसके लिए सब लोकल है। लोकल है अभी बेस्ट वेज है जाना देखना है इधर पे। ऐसा है सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कलेक्शन गेटवे गेटवे या मैनुअल्स ये है एलियास। ठीक है तो इसमें देखिए हम्म एलियास क्रिएट हुआ है
आपका ES4 EST ES4 पिन लोकल, ये लोकल गेटवे को सपोर्ट करता है, लोकल एप्स को, और डाटा हम्म। सर्विसेज। वो डाटा ऑन बैकएंड ये क्या है? मैं S4H दिया हूँ, ठीक है ना, S4H दे देते हैं स्टैंडर्ड, और ये प्रॉपरली कंफिगर नहीं है, S4EH दे देता हूँ। हम्म। बिलिंग डॉक्यूमेंट कंफिगर S4H। एच। हाँ वही तो मैं कह रहा था, एस फॉर एच ही था। ओके, सो ये हो गया हमारा कैटलॉग। टारगेट करेक्ट। में। हाँ। अभी ग्रुप में जाएंगे। आ, यहाँ पे कस्टमर, ये हम्म। कस्टमर जो क्रिएट किए थे आप, राइट। अब इसमें क्या यस। करेंगे, ये क्या है, यूट्यूब एक्सटर्नल, अरे ये मैंने किया था एक। यहाँ पे इसमें आप ऐड अपना वाला करते ऐड, हाँ। हैं वाला अभी आपने बिल्ड किया जो। सेल्स, कस्टमर, ये है कस्टमर। इसमें ये ले चुका हूँ, ये नहीं लिया हूँ ना, ये टिक मार्क है, ऑलरेडी लिया हुआ हूँ, ये टिक मार्क नहीं है, हम्म। इसको टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अभी ऐड हो गया है, टैग जाएंगे, ये आ गया है हम्म। सेल्स क्वेरी, करेक्ट। हम्म। अब आता हूँ की कोड में, ठीक है, एप्पल पी, रन किया। PFCG रोल का तो बेसिकलिटी का काम है, वो जाके कैटलॉग और ग्रुप ऐड कर देगा, और आपको डिस्प्ले हो। सो लेट मी सी, हाँ यहाँ आया, राइट। अब यहाँ पे हम्म। आ रहा है जी कस्टमर आपका क्वेरी। इसमें वही एक ही दिखाएगा जो हमने असाइन करवाई थी। यहाँ इसमें PFCG को तो एक्सेस होगा नहीं आपको। हम्म। वही मैं आपको बता रहा था। तो कस्टमर अप्लाई किया हुआ है, हम्म। टैग भी। ग्रुप उन्होंने कर दिया था, पर उसमें जो क्वेरी वो नहीं करी ना। नहीं, क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कस्टमर में असाइन किया हुआ है, तो ये कैटलॉग तो हम्म। ऐसा ही नहीं, राइट। हम्म। नहीं, ग्रुप असाइन है, कैटलॉग असाइन नहीं किया था क्या उसने। नहीं नहीं, ग्रुप ही असाइन किया था। ग्रुप में जो हमने एक कैटलॉग बोला था वो कर दिया था उन्होंने।
ये ग्रुप है, कैटालॉग तो ऐसा नहीं किया है। जेड क्वेरी कैटलॉग है ना? नहीं नहीं, गेट कस्टमर है, ये तो स्टैंडर्ड है। ये जेड क्वेरी में अपन ने तो बिल्ड किया था ये वाला अच्छा, कैटलॉग। जेट क्वेरी, हाँ हाँ जेट क्वेरी हाँ हाँ आपने बनाया था राइट। वन हाँ। मिनट तो ग्रुप में ही जेट उन्होंने वो क्वेरी, अच्छा 1 मिनट। तो मेरा यहाँ पे जेट क्वेरी करेक्ट, हम्म। ये है। हम्म। तो जेट आर वाई, हम्म। हम्म। कैटलॉग्स में आएगा जेड क्वेरी। कैटलॉग असाइन होगा ना। ये ये कैटलॉग है, जेड ये अंडर तो स्कोर। ग्रुप है, ये ग्रुप है जेड कस्टमर। जेड क्वेरी कैटलॉग है। ये कैटलॉग नहीं है, टाइल्स है ये। हम्म। ये टाइल्स है, ये सब आप एक बार टाइल्स है। कैटलॉग्स कैटलॉग्स में जाके जेड क्वेरी सर्च करो। एक टू 1 मिनट। तो इधर पे, अच्छा इसका नाम और जी क्वेरी राइट, ये यस रियल यस। कैटलॉग हाँ राइट। ये हाँ हाँ। कैटलॉग, अभी मैं इसको कैटलॉग को सर्च करता हूँ, कैटलॉग में सॉरी में कैटलॉग सर्च में करता जाके, हाँ वही मैं कह रहा था। हूँ। आगे नीचे ही कैटलॉग नीचे वही है। ये है राइट। हम्म। अच्छा, इसमें हम क्रिएट करते हैं अपना इसमें क्रिएट टाइल्स। कर लो आप, हाँ वही। इसमें टाइल्स क्रिएट करता हूँ। ओके, तब हम्म। आएगा मेरा इसमें टाइल्स सेल्स ऑर्डर QUERY क्वेरी, हम्म। सेम डाल दो। ओके, सिमेंटिक तो सब डालना पड़ेगा। डीलिंग डॉक्यूमेंट, डीलिंग डॉक्यूमेंट, सेल्स ऑर्डर व्यू, पैरामीटर। ये क्या है एक्चुअली हमको तो नहीं पता है। पैरामीटर, अच्छा सेव करना। ओके, टारगेट मैपिंग में चलते हैं अब। यहाँ पे क्रिएट टारगेट मैपिंग, इसमें 70 ऑब्जेक्ट में हम डाल देंगे डीलिंग डॉक्यूमेंट हम्म। और सेल्स एनालिसिस वॉल्यूम, सेल्स एनालिसिस वॉल्यूम। ठीक है, आइटम में डालते हैं सेल्स ऑर्डर क्वेरी UERY वॉल्यूम, जो भी है URL, इसको ले देते हैं। हम्म। आप यस और यस डाल देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। और हम्म। सॉरी, इसका आप जाएंगे, इसमें और एक चीज है कॉन्फ़िगर, इसमें अबे आप तो इसके दो वो हो गए ना, यूज केस हो गए। टिक हो जाए। क्या हो गया? एक तो पहले से था मेरा वो एएफओ वो रिपोर्ट कोई वाला। दिक्कत नहीं, आप मल्टीपल जगह क्रिएट कर सकते हो, उससे कोई मतलब ओके ओके। ठीक है ठीक है। इतना भी
क्रिएट कर सकते हैं और कितना भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। अच्छा। अब जेट कस्टमर असाइन है और जेट क्वेरी असाइन है, राइट? तो हम इसमें यस। उठा देंगे। हाँ। इसमें हम क्या कर लेंगे, डिफरेंट कैटलॉग उठा सकते हैं। वन टू मेनी रिलेशन हम्म। होता है। अभी जैसे मैं जेट कस्टमर उठाया, राइट? अभी हम्म। मैं जी स्टार मारूंगा। इसमें हम कोई भी कैटलॉग उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको वही उठा। करेक्ट? अभी आप समझे? लेकिन आपको असाइन तो होना पड़ेगा क्वेरी यहाँ पे, तब ना एक्सेस कर पाएंगे आप। अच्छा। हाँ सुधा, तो बी बताइए। आएगा कि नहीं आएगा बी? देखो अभी चेंज हुआ ना ये हाँ, आया, दो आ गए। क्वेरी आया। अब यहाँ से ऐड कर लिया, डिफरेंट कैटलॉग से भी आप एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ओके ओके। मल्टीपल कैटलॉग से टाइल्स उठा के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर हम्म। रिक्वायरमेंट। अब देखिए इसमें ओके। कितना, इसमें दो कैटलॉग यूज हुआ है, एक ग्रुप यूज हुआ है, और हम्म। राइट, और लेकिन डिस्प्ले हम्म। आपको बस एक ही है। करेक्ट? तो वो अब अगर डिस्प्ले दूसरा करेगा कैटलॉग, आपने? दूसरा दूसरा कैटलॉग अगर आपको असाइन होता, तो आपको बहुत सारा एप्स, तीन चार पांच सब एप्स एक्सेस रहे। हम्म। समझ गया ना? कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, मैं यही पूछ रहा था, शो करेगा? लेट वेट, लेट्स वेट। हम्म। वो कस्टमर, देखो इसमें दो आया ना अभी, हाँ, इसमें तीन। आपको दो और तीन आ कैसा आ गया। गया? वो ये कैसा आ गया? पुराना ग्रुप असाइन था शायद, उसमें असाइन किया है, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा पिछले बार। हम्म। ये हम्म। यहाँ पे हैश है, और यहाँ पे माइनस है। सो सम एरर है। नाउ गो टू योर कैटलॉग, क्वेरी टाइल्स। अब ठीक है। अरे यार, अगेन हम रन करते हैं।
Now go to again customer. Mhm. So let's save. Let me run again. So let UI5 component. Yeah, I've seen pathway. UI5 component technical name ये और UI5 component ये है परिवर्तन टारगेट मैपिंग कॉन्फ़िगर कंपोनेंट देख सकते हैं U1 आई ये UI5 क्या एरर दे रहा है ये बार बार। कुछ काम भी नहीं कर रहे वो जो अपन ने पहले क्रिएट करी थी उसमें से एक बार आप देख लो ना, सब सेम ही है क्या। डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हम्म अच्छा UI5 के लिए कुछ अलग करना पड़ता है डायरेक्ट URL रहता है तो डायरेक्ट URL पास करके देखता हूँ
URL हम लोग ना डायरेक्ट, एक मिनट, जैसे URL है इधर से जनरेट होता है, करेक्ट? हम्म। अगेन ये URL जनरेट होता है। ओके, इसमें एक्चुअली ये भी है ना, पहले हम लोग FLPD कस से बना सकते हैं। 3 पार्ट आता है। जैसे ही कॉन्फ़िगर में गए, मैंने ज्यादातर क्रिएट किया है ये करके, राइट? यहाँ लॉन्च पैड डाला, एलियास डाला, इंस्टेंस डाला और वहां क्रिएट कर दिया, राइट? मैं चाह रहा हूँ ऐसे करने के लिए, क्योंकि इसके लिए कैसे कर सकते हैं इसके, ऐसे एप्पल, ये एनालिटिकल क्वेरी टाइप का है ना, सो स्टैटिकली है, सिमेट्रिक अलग से किया है, वेब टेम्पो, वेब टेम्पो वाला नहीं चाहिए। तो ये वाला यूज करना चलता हूँ, चाह रहा हूँ IFC बेस्ड URL UI5 एप्लीकेशन look like this। Okay, तो इधर में पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है। Okay, now let me try. So this is URL, right? Let me search URL.
IFC नोड। सो ये हमारा IFC नोड हो गया। सो ये वाला देना है क्या हमको? टेस्ट सर्विसेज, या ये वाला दे सकते हैं। हाँ, ये वाला देना होता है एक्चुअली। ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, ये आपका UI5 के लिए, फ्रंट एंड के लिए। अच्छा। और इसके लिए शायद अलग से फ्रंट एंड सिस्टम ऑटोमेटिक आ जाता है जब हम लोग सीडीएस व्यू के लिए डालते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये इसका मैं बताता हूँ कैसे आता है। ऐसा, ये आ गया एक आपका, करेक्ट। ये आ गया सीडीएस व्यू हम्म। के लिए। तो आपको सीडीएस व्यू का देना है। तो SICF। अब इसमें आप जाएंगे और इसका देखेंगे BCUI5, राइट। हम्म। SAP BC एंड UI5 जनरेट हुआ रहेगा। ये देखिए, ऊपर ऊपर। UI5 हम्म। ये जनरेट हुआ है। और इसके अंदर कौन सा जनरेट हुआ है? SAP, SAP, ये देखो, SAP नेम स्पेस फॉर SAP UI5 एप्लीकेशन, राइट। और इसमें जाएंगे नीचे हम, हम्म। क्या नेमिंग स्पेस है? SD, SD7, SD और नीचे होगा FPQRS, MLOPQRS, भाई यस डी, एस डी, ESD, SVA, SVA। और नीचे अब कितना एप्लीकेशन है? SAESD, ST_SVA, ये वाला है सेल्स वॉल्यूम एनालिसिस, दिख रहा है आपको? ये है, ये एप्लीकेशन है हमारा UI5 का। और हमारा CDS का है ये वाला। तो हमको ये देना है, करेक्ट। हम्म। कॉपी, ओके, इधर गया मैं, ये डाला और आ गया। ये कॉपी किया और ये डाल दिया। सो यही कह रहा है मेरा, ठीक है।
save it. एक्चुअली जनरल प्रोसेस होता है एल कस्ट करके क्रिएट करके, उससे करने से बेटर है। रोल क्रिएट करके वो सही रहता है यूआई 5 एलिमेंट के थ्रू। अभी भी वही एरर दे रहा है क्या ये? चलो ठीक है, यूआरएल हो गया। डेटा वेरिएबल ये ओपन हुआ, ये सीडीएस व्यू ऐसे ओपन हुआ है। राइट, हो गया। सीडीएस व्यू ओपन हुआ है हम्म। ऐसा। सो क्या हमको डाला फिर सीडीएस आपने व्यू, उसमें? सीडीएस व्यू डाला ना मैंने। अच्छा। मैं यूआरएल डाला, यूआरएल तो एस पर एस यूआरएल डाला ना? या एस पर यूआरएल काम कर रहा है। हम्म। राइट, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, एक्चुअली हमको एप्लीकेशन चाहिए फ्रंट एंड का जैसा। तो उसके लिए या तो आपको एलपीडी कस्ट ये ऊपर वाला यूज करना है, पीडी एप्स यूजिंग एलपीडी कस्ट। ये वाला यूज करने के लिए थोड़ा इश्यू आता है यूआई 5, राइट। इसको मैं भी देखता हूँ, अभी मैं भी भूल गया हूँ actually इसको कैसे करते हैं। इसको हम कर सकते हैं, इसमें रोल क्रिएट करेंगे, मैं भी करके दिखाता हूँ। इसमें आता है आपको एल एल पी डी अंडर स्कोर यूएसटी कस्ट, एल पी डी अंडर स्कोर यूएसटी कस्ट स्पैच। पहली बार रन हो रहा है सिस्टम में, उसके का टाइम लग रहा है। आपके न्यू लॉन्च पैड कोई एग्जिस्टिंग क्रिएट किया है क्या? नहीं क्रिएट किया। चलो न्यू लॉन्च पैड क्रिएट है, जी सेल्स स्टैंडर्ड सेल्स, यहाँ पे तो सेल्स का। ओके, नाउ मेरा ये एप्लीकेशन है।
That's sales staff sales. ये है। इसमें आप बहुत सारा चीज दे सकते हैं। यूआरएल दे सकते हैं, UI5 वेब इंप्रो, जावा, सो टी कोड दे सकते हैं। तो मेरा इसमें BI क्वेरी, पिस्टल रिपोर्ट, इन्फो सेट, यूआरएल है, और एलियास सो एडवांस। नीचे आएंगे, एलियास लोकल सिस्टम, और नीचे आते हैं यहीं पे तो कुछ URL दे दो। आपको URL दे सकते हैं। हाँ हेलो, इसको मैं देखता हूँ, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है इधर। ओके, ठीक है। टाइम ओके। हम्म। और ठीक है। ऐसे ही करते हैं उसमें कॉन्फ़िगर, बस वो सिलेक्शन जो है ना आपका यहाँ पे, वो थोड़ा प्रॉपर होना पड़ता है। एक्चुअली इसमें रिसेंटली मैंने किया था, क्लाउड फाउंड्री में आपका एप्लीकेशन डेवलप किया था, उसको SAP में ये किया था, डिप्लॉय किया था, और वो वाला URL में दिया था रोल में। इसमें कौन सा URL देना है वो मुझे देखना होगा। UI5 वाला देना है कि FTFC, नहीं UI5 वाला ही देना होगा URL। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ, राइट? ओके। हाँ हाँ ठीक है। ओके, तो ऐसे है, PV का, एप्स का कॉन्फ़िगर, यही मेन पार्ट रहता है आपका।
इसी में स्ट्रगल आता है। ट्रांजेक्शन सबसे इजी रहता है। मेन आपको एलपीडी कस्ट और यूएफआई वेब डेम को भी इजी रहता है। ये दो तीनों में आप, ये दोनों में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी। ऊपर वाला तो, नीचे वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, हम्म। चलेगा। ओके। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको और क्लास। ठीक है। ठीक है अंकल, ओके। हम्म। ओके, बाय। नहीं। हेलो। हेलो। ठीक है ना? ठीक है।